I will complete my discussion in around 35, 40, 50 minutes, not more than that, because there are a lot of things where clarity is yet to be provided. So definitely, as and when clarity comes, we'll meet often and we'll discuss that. But in general, let us see board exams, okay? Okay. Now I'm posing questions to you. You have to tell me whether it is a fact or a myth, okay? Just a second, just a second. Okay, okay. So you have to tell me fact or a myth. So first question, you should practice each and every sums before the exam. Rudrakshi says fact. Mayank says math. He doesn't understand. What did I ask? So is it a fact or a myth? Message me, fact or myth, fact or myth. Now there is a lot of mixed responses. I'm reading messages only from Shashikant Shetty, by the way. So I'm getting mixed responses. In fact, there are maximum people who are saying fact. Now, let me tell you one thing. If you try and solve each and every sum before exams, you will never prepare for exams. Whenever you are preparing for board exams, याद रखो exams, board exam में तैयारी करने के लिए, what is very important is also to know क्या पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए. Okay, Atharva, no problem. So what is very important is कि flow of sums. Apparently there are so many chapters. Which chapters to be done first? क्या रह गया तो चलेगा? किस पे फोकस करना है? किस पे नहीं करना है? So that is very important. So I will go with the myth for this. हमको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर पहले करने हैं, और मैं आज नहीं बता पाऊंगा तुमको because I do not have the latest chapter wise weightage. Board has not given us the latest chapter wise weightage. Okay, so इसके बारे में बाद में डिटेल करूंगा. You lose marks if you have bad handwriting. Shreyas says myth. Dhanashri says fact. Krishika myth. Isha fact. Kaivalya fact. Mayank fact. Samarth myth. Dhanashri fact. See, once again, a mixed answer. Now, once again, if you ask me, it's a myth. It's a myth. But that doesn't mean you start writing the worst of a handwriting from tomorrow. Exactly, Prithvi. It should be legible. समझ में आना चाहिए. It should be neat. Use enough space. कम cancellation करो. That is very important. So it's a myth. It is possible to revise everything during exam period. It is possible to, okay, myth, okay, myth, okay, Neha Mishra says fact, okay, Mauli from Chembur says fact, myth, Jimit Limbachia, Mr. Limbachia says fact, myth, Saidham Akriti fact, myth. Oh, Devik, you feel. I'll just speak to you, Devik. Don't worry. Okay. Myth. Fact. First of all, let us focus on the word revise. सबसे पहली बात रिविजन पॉसिबल है, याद रखो. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाई करना है. आई एम टेलिंग रिविजन. If you have studied them enough number of times, a proper strategy of revision, a proper method of revision. Now try to understand, students. When I say board exams preparation, अगर मुझे पूछोगे ना, बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन को मैं 2 हाफ में बांटूंगा. एक होता है सपोज 10 months, एक फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. In the first half, what you do matters only 4 to 5% of your results. In the first half. In the second half is the most important thing. याद रखो, second half is the most important thing. यहां से तुम लोग क्या करते हो?
Now, if you ask me, the secret of the results that we have produced over years is our system of prelims. Maybe in a day and two, there is a pairing session. You will understand कि exactly prelims कैसे होने वाला, and trust me students, उस चीज को properly follow करना. It would be going to be a great result. So is it possible to revise everything? Yes, it is a fact. Next, you lose marks for cancellation. You lose marks for cancellation. You lose marks for cancellation. Fact, myth, fact, myth, fact, myth. जल्दी बताओ, fact, जल्दी, 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 जल्दी. Fact, 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 myth, 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 fact, 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 fact. Myth, neatness matters. You lose marks for cancellation, cancellation. So once again, there is a fact, mixed answers. So if you ask me, it is a myth that you lose marks for cancellation. You can cancel stuffs. लेकिन कैसा होता है में प्रॉब्लम क्या होता है में now try to understand, answer my few questions. Okay, answer my few questions. Is our paper corrected by a machine or an human? Machine or human? Is our paper corrected by machine or human? आंसर करो machine human क्या लगता है तुमको? तुम्हारे हिसाब से हमारा पेपर कौन करेक्ट करता है? मशीन करेक्ट करता है कि ह्यूमन करेक्ट करता है? आंसर करो. Okay, just a second. I think the other account got disconnected for some reason, and people have started chatting here. Just a second, students. Just a second. I'm trying to re-log in from the same account because I'm not comfortable chatting from here once I share my screen. What's wrong with my internet? Just a second, bachalo. Okay. Connected. Connecting to Zoom now. Okay. Okay, now, okay. Okay, Zia. Zia says human. ह्यूमन करता है बट ऐसा करेक्ट है कि मार्क्स नहीं आते हैं. ओके, ह्यूमन से लाइक ओके ओके ह्यूमन डेफिनेटली. अभी ह्यूमंस का सबसे बड़ा वीकनेस होता है इमोशंस. याद रखो. नाउ सपोज आई एम द एग्जामिनर हु इज करेक्टिंग योर पेपर एंड आई फॉट विथ समबडी. मेरा झगड़ा हो गया किसी से और मेरे पास पेपर करेक्शन का टारगेट है. मुझे आज ये सारे पेपर्स करेक्ट करने हैं. मैं पेपर करेक्शन के लिए उठाता हूं और इतना भद्दा सा पेपर मिलता है कि मैं इरिटेट हो जाता हूं. राइट? सो पेपर हैज टू लुक नीट, नॉट ब्यूटीफुल. उसका मतलब तुम लोग फूल टिकली सब बनाने का नहीं, पेपर में सजाने का नहीं. द मूड ऑफ द एग्जामिनर माइट रिफ्लेक्ट द पेपर. तुम्हारा कैसे कैंसिलेशन है? अगर समझो तुम लोग ने एक वर्ड लिखा है. अभी सपोज मैंने एक वर्ड लिखा है. I've written something which I have to cancel. Say for example, I have written Shashikant. Okay, I have written Shashikant. Now I have to cancel the Shashikant. तो नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा कैंसिल किया, खत्म हो गया. लेकिन हमारे पास कैसा मालूम है? हम लोग जब कैंसिलेशन पे आते हैं ना, एक अब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं ना, तो हमारे अंदर का ना एक मॉडर्न आर्ट जाग जाता है. कभी शशिकांत कैंसिल करना हम लोग ऐसा करते हैं. ठा 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 डिंग 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 डिंग. इतना हुआ नहीं, अभी मजा नहीं आ रहा है. थोड़ा सा यस फैंटास्टिक, अभी मजा आ गया. और थोड़ा टाइम मिला, सम आता नहीं है तो इधर आके और कचरा करेंगे. मतलब बाद में एग्जामिनर को क्या उसको स्क्रैच करके देखने का है कि उसने क्या लिखा है. तो रिमेंबर वेन एवर यू कैंसिल, मैंने देखा है एक बड़ा आंसर कैंसिल करने का तो 5-6 लाइन गिरता है. हम लोग थोड़ी स्क्रैच कर रहे हैं, जी पे थोड़ी हम लोग. राइट? सो जस्ट अ स्ट्रोक. हाँ, स्क्रैच एंड विन मार्क्स. स्क्रैच करके 0 मार्क्स मिलेगा रिया. सो इट्स अ मिथ, बट दैट डजंट मीन यू विल मेक इट बैड. अच्छा, तो अभी
Okay, next. You cannot change the order of the question paper. You cannot change the order of the question paper. Fact, myth. Batao. Okay, Jander says fact, Calista says fact, Srushti says fact, Disha says fact, myth, Rageshri says myth, fact. Majority लोग fact के लिए हैं. Shrey says yes, myth है, we can. If you ask me, actually speaking, we can change the question paper का order. लेकिन once again, क्वेश्चन नंबर 1 आया, उसमें सब क्वेश्चंस है. अब ये सब क्वेश्चंस चेंज नहीं हो सकते. मेन क्वेश्चन पूरा चेंज हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर मेरे पास सप्लीमेंट है, आफ्टर एवरी सप्लीमेंट मैं उस पर आऊंगा, तो सब क्वेश्चंस चेंज नहीं कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं. लेकिन मेरा एक सजेशन है, ट्राई नॉट टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन नंबर. मतलब मेरा सजेशन है. आई विल टेल यू व्हाई. Even I correct, whenever I correct few papers, no, it is a myth that you cannot change the order of the question, Calista. You can change the question. सब क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकते. मेन क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग एंड में लिख सकते हो. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट वी कैन नॉट राइट इट बिहाइंड. एक पर्टिकुलर सब क्वेश्चन नहीं लिख सकते, पूरा मेन क्वेश्चन चेंज कर सकते. रिया, क्वेश्चन नंबर 1 में 5 लिखना है तो ये पूरा 5 एंड में लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर का बीच का 3-4 का एक लास्ट में नहीं लिख सकते. अभी मैं तो बोलूंगा ये भी चेंज मत करो. मेरा सजेशन है कि डू नॉट चेंज इट एट ऑल. व्हाई? सी व्हेन वी करेक्ट पेपर्स ना, इफ एट ऑल आई एम करेक्टिंग सम पेपर, समझो प्रीलिम का पेपर करेक्शन कर रहा हूं, तो एक 4-5 पेपर करेक्शन करने के बाद ना, वी एक्चुअली सब कुछ बाय हार्ट हो जाता लाइन में. ठीक है. और तुम लोग भी क्या करता मालूम है? सी अंडरस्टैंड, व्हेन वी राइट अ पेपर वी नीड टू क्रिएट कन्वीनियंस फॉर द एग्जामिनर, नॉट अ चैलेंज. तो कोई क्वेश्चन नंबर चेंज करता है, उनको अलग ही मजा आता है. समझो 5 क्वेश्चन है, पहला चालू करेगा क्वेश्चन नंबर 5 से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 लिखेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेगा, बाजू में लिख देने का, हिम्मत है करेक्शन कर. पागल हो जाएगा ना एग्जामिनर. He will get irritated. Yes, exactly. That may lead to losing marks. Exactly, Calista. Right. So, suggestion once again: do not change the order of the question number. ठीक है. नहीं मिस करना चाहिए रिया. एवरी क्वेश्चन के बाद गिनो. एवरी क्वेश्चन के बाद गिनो. क्यों नहीं लिख सकते मालूम है? एंड में क्या होता है मालूम है? अभी समझो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोग को 4 अटेम्प्ट करने का था. तुमने लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा. थोड़े अभी और तुम लोग को याद आया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 लिखा है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिखते हो. ठीक है. अभी एग्जामिनर का करेक्शन का पैटर्न समझो. एग्जामिनर ने क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट किया, 3 मार्क दिया. वो मेन सप्लीमेंट पे जाएगा, उधर लिख देगा क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क. पूरा करेक्शन हो गया, एंड में वापस क्वेश्चन नंबर 1 दिखा, वो शायद नहीं देगा मार्क्स इसको. तो गलती से भी छूटना नहीं चाहिए ना. एवरी क्वेश्चन नंबर के बाद चेक करो. दैट इज व्हाई वी आर गिविंग यू दिस गाइडेंस लेक्चर्स टुडे. ट्राई करो कि नहीं छूटना चाहिए. ऑर्डर चेंज करो ही मत शिवानी. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. या लीविंग स्पेस, यस, दैट इज योर चॉइस. एट द मोस्ट यू कैन लीव स्पेस. परफेक्ट. सो दिस इज अ मिथ. नेक्स्ट, you should study continuously during exams. ये एक ही क्वेश्चन है जिसका आंसर सब लोग ने सेम दिया है. एक बच्चे ने मेरे को फैक्ट लिख के नहीं दिया है. ओके, अभी आया फैक्ट यश का. यश wants to study. Arya from JB Nagar wants to study continuously during exam. Now others are writing myth, which I believe it is a myth. अभी तुम लोग बोलेगा सर 1 मिनट में मम्मी डैडी को बुलाता हूं, आप ये उनको सुनाओ. राइट? Why you know myth? बोर्ड एग्जाम से पहले ना स्टूडेंट, I want you to sleep for 8 hours at least. At least 8 hours. याद रखो, तुमको 8 hours सोना पड़ेगा टू बी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल. What is very important is the confidence, the presence of mind. Silly mistakes कभी भी हो सकता है, but if you are fully present in the situation, कभी silly mistakes होगा
नहीं, अरे लेकिन तुम लोग साल भर पढ़ाई नहीं करते ना, सिर्फ एग्जाम का टाइम लेके बैठते हो, तो सानिका बोलना ही पड़ता है पेरेंट्स को। तुम रेगुलरली पढ़ोगे तो टेंशन ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यस लावण्य, इट इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू मैनेज। अभी मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम का दिन कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। मतलब आने वाले जो टाइम है हमारे पास, जो भी 5-6 मंथ्स अभी बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वी हैव अराउंड 4-5-6 मंथ्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। ओके, you should solve at least 5 to 10 papers before board exams. Others, then you should sleep early. It is a fact. You have to solve at least 5 to 10 papers of 80 marks of other subjects, whichever is, or 40 marks of algebra geometry. That is necessary. Okay. Now, it is possible to score good marks in board exams. Trust me, ये मेरा स्टेटमेंट लिख के लेना, मैं एक्सपीरियंस के साथ बताता हूं। मैं कुछ बच्चों का तुमको चाहिए तो कांटेक्ट भी दे दूंगा। आज तक अगर बुक को हाथ नहीं लगाया ना, आज तक बुक को हाथ नहीं लगाया और आज से सिंसियरली पढ़ाई करते हो ना, फिर भी 90+% ला सकते हो। मार्क माय वर्ड्स। सिंसियरली हमारे प्रीलिम्स के प्लानिंग को फॉलो करो। इट्स अ वंडरफुल प्लान वेयर वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द प्रीलिम्स। और यहां से हर एक एक्टिविटी बहुत जेन्युइनली करो। राइट एवरी प्रीलिम्स दैट यू, इफ इट इज गोइंग टू बी अ बोर्ड एग्जाम्स। अगर यहां से भी सिंसियरली पहले फॉलो करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 90%। करेक्ट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक जितना भी पढ़ा है, तुम लोग ने पढ़ाई किया है, इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका बहुत पढ़ाई करके हो गया है, तो उनका लाइफ यहां से थोड़ा सिंपलर है। जिसने पढ़ाई नहीं किया है, उनको यहां से बहुत ज्यादा मेहनत है। यू हैव टू स्टडी फॉर 6, 7, 8 आवर्स, जितना हो सकता है उतना। वंस वी गेट द क्लैरिटी फ्रॉम बोर्ड्स, एग्जैक्टली हमारा बोर्ड्स कब है एंड ऑल, रिमेंबर, it's very important. It's very important that you study from here. Okay. Now, our textbook has two textbooks, Math 1, Math 2, Algebra, Commercial Mathematics. Just to clear, it's not algebra. Math 1 is comprised of algebra, commercial mathematics, and statistics. Math 2 is not geometry, it's geometry, mensuration, and trigonometry. These are different branches of mathematics. Okay, now quickly let us get now key features of textbook में ये थोड़ा सा स्कैन करके देख लेना, कुछ कुछ काम आएंगे इसमें। कुछ क्वेश्चंस है क्या देख लेना, अपडेट किया है नहीं किया है, लेटेस्ट कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। फॉर मोर इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। वी नीड नॉट स्टडी अबाउट दिस। लिस्ट ऑफ स्पेसिमेन गो थ्रू 1, क्वेश्चन नंबर 5 में आने का चांसेस है। मतलब इसमें से सारे पॉसिबल नहीं है, लिस्ट ऑफ स्पेसिमेन में से कुछ कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ कुछ सॉल्व किए जा सकते हैं। जो जो सॉल्व किए जा सकते हैं वही एग्जाम में आएंगे। Our paper will be divided into 2 parts, hopefully 40 algebra, 40 geometry in your textbook, Shravani. 40 algebra, 40 geometry, math 1, math 2, and 20 marks for internal evaluation as of now. Now, chapter wise weightage, हमारा ये पुराना chapter wise weightage है, where linear को 12 marks था, quadratic को 12 marks था, इधर 8 marks था, इधर 8 marks था, इधर 8 marks था, इधर 12 marks था। अभी नॉर्मली जब भी मैं गाइडेंस लेक्चर लेता हूं, वी टेक मोर देन 30 to 40 मिनट्स ऑन दिस स्लाइड, क्योंकि मैं समझाने का कोशिश करता हूं कि किसको पहले पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ा तो क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ा तो क्या करना चाहिए, फिर भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। मतलब आई कैन टेल यू स्टडिंग हाफ द टेक्स्ट बुक एंड स्कोरिंग मोर देन 30 आउट ऑफ 40। बट अनफॉर्चुनेटली linear ka we are still doubtful about financial planning and statistics. 99.99% it is removed from our portion, but there is a final circular to be coming yet. तो मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अगर प्रोबेबिलिटी का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो यू नो व्हाट टू डू। फिर हम लोग एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। हम लोग एक लेक्चर में हम लोग वी विल मीट सेपरेटली
We will meet separately for discussing this slide once we get a clarity on this. Okay, so I'm just skipping this slide as of now. क्वेश्चन पेपर पैटर्न में शायद कुछ चेंज ना हो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मतलब मैंने मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स में मैंने शायद ये बहुत पहले मैंने क्लियर किया था कैसे पढ़ना है, बट लेट अस सी. अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1A में देयर आर 4 MCQs. ओके, 4 MCQs में से मुझे चारों सॉल्व करने. इसका मतलब क्या है पता है? मैं कॉन्सेप्ट्स, मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स आना जरूरी है. मैं एक भी कॉन्सेप्ट ऑप्शन में छोड़ नहीं सकता हूं. मैं बड़े बड़े सम्स छोड़ सकता हूं ऑप्शन में, बट मैं एक भी कॉन्सेप्ट ऑप्शन में छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि एमसीक्यू 1 मार्क के सम तो छोड़ ही नहीं सकता हूं. नो चैप्टर कैन बी स्किप्ड. यस आदर्श, परफेक्ट. नो चैप्टर कैन बी स्किप्ड. एक कॉन्सेप्ट भी छोड़ नहीं सकता हूं. एक छोटा सा फॉर्मूला यूज हो रहा है कोई सम में, वो फॉर्मूला मुझे आना चाहिए. Definitely what I will do is in the later stage after your first prelims I'll give you a list of all the formulas, not before first prelims, because first prelims तक तुमको खुद को बनाना है. ठीक है, क्योंकि because when you make the list of the formulas it would be quite helpful. Okay, so MCQ का याद रखो. एक हो गया MCQ. और यहां पे भी देखो, यहां पे भी 4 out of 4 है. मतलब कॉन्सेप्ट तो सब आना ही चाहिए, बिकॉज 8 मार्क्स आउट ऑफ 40 में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमको कंपलसरी सब अटेम्प्ट करना है. तो ये कोई भी चैप्टर से आ सकता है. तो कोई अगर मेरे को पूछेगा सर मैं अल्फा बीटा छोड़ सकता हूं, सम्स छोड़ो, बट उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आना चाहिए. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज 20%. यस यस प्रीत, परफेक्ट. तो 20% ऑफ द पेपर याद रखो. 35% तो पास होने को चाहिए. 20% तो इंटरनल से, 20 मार्क्स तो इंटरनल से मिलता है, तो ये एक एक मार्क ही पास करा देगा ना. एक्टिविटी 2 out of 3 ये बोनस होता है. ये बहुत इजी होता है क्योंकि इसका स्टेप्स भी प्रॉम्प्टेड रहता है. तो मेरे हिसाब से एक्टिविटी इज अ बोनस. एक्टिविटी हमारे लिए हमेशा बोनस होगा. और याद रखो ये मिथ निकाल दो कि हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं होने वाला. इट इज वेरी क्लियर कि बोर्ड एग्जाम 100% होगा, बिकॉज एग्जाम्स ऑफ CS, CA एंड ऑल अदर एग्जाम्स आर बीइंग कंडक्टेड. तो हमारा भी बोर्ड एग्जाम्स रिटर्न होने वाला है. हमारा बोर्ड एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाला है. दैट इज फॉर 100%. ओके, फिर 4 out of 5 2 मार्क्स, ये भी बोनस होता है. वापस एक एक्टिविटी, वंस अगेन बोनस. देन 3 मार्क्स सम, 4 मार्क्स सम, 3 मार्क्स सम. ये अभी मेरे हिसाब से मैंने आज तक इसको डिफिकल्ट होते हुए देखा नहीं है, बट डिफिकल्ट हो सकता है. उसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकता है, क्योंकि बोर्ड पैटर्न के हिसाब से यहां तक टेक्स्ट बुक का है. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न है. इसके बाद पैटर्न चेंज हुआ तो आया तो पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हर साल टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा, ऐसे क्लेम करते हैं सब लोग. बट 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 क्वेश्चन नंबर 4 में तुम लोग देखो एनी 2 out of 3 है. मैंने आज तक देखा है कि 2 सम टेक्सुअल आता है और 1 सम नॉन टेक्सुअल आता है हमेशा. तो अगर मेरे को टेक्स्ट बुक पूरा आता है तो मुझे इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. दिस आर अंडर नॉर्मल सिनेरियोस. अगर पेपर डिफिकल्ट बनाना है तो लोग 2 बाहर का दे देंगे. क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेटली बाहर करेगा. क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेटली बाहर करेगा. लास्ट ईयर का पेपर देखो, बहुत ज्यादा सिंपल सम्स था. दे आस्क एनीथिंग सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. वी विल प्रिपेयर. बेसिकली ये प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रीलिम्स का रिजल्ट देखेंगे who are doing textbook very nicely, जिसका टेक्स्ट का अलजेब्रा में मार्क्स बहुत अच्छा रहेगा, उनको सेपरेटली मैं ये सारे चीज के लिए प्रिपेयर करूंगा. और जिसका मार्क्स अच्छा नहीं होगा उनको वापस टेक्स्ट बुक के लिए प्रिपेयर करूंगा. तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिपरेशन है, इट इज सब्जेक्टिव. जब जो रेडी है उसको प्रिपेयर कराएंगे, उससे पहले नहीं. द प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल सम्स इज ओनली फॉर दोस हु आर रेडी आफ्टर आवर फर्स्ट प्रीलिम्स. ओके, सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट. क्वेश्चन नंबर 5 में कंस्ट्रक्टिव नेचर में कुछ भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 5 कैन बी एक्सप्रेसिंग योर वॉइस. ह्यूरिस्टिक अप्रोच का सम्स याद है? एक ह्यूरिस्टिक अप्रोच का सम्स मैंने प्रोबेबिलिटी का डिस्कस किया था. कौन सा सम था वो? 11 बॉल्स 5 टाइम्स एक बॉल, रेड बॉल्स ग्रीन बॉल्स, टेबल वाला सम बनाया था. यस यस, परफेक्ट आदर्श. यस,
तो वैसा सम्स, ह्यूरिस्टिक अप्रोच, ऑप्टिमाइजेशन का सम्स, ड्रॉ फिगर आ सकता है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन ये ज्योमेट्री में आएगा, फ्लो चार्ट आ सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेजेस। एक पैसेज जीएसटी पे आ चुका है सैंपल बोर्ड पेपर में पहले का। Yes, 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 yes. Shrey is a very good student. He attends all my lectures, so he knows it. Good. पेपर पैटर्न को अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूं तो दिस इज हाउ इट इज ब्रोकन. सो मेरे हिसाब से 20%, 52.5% and for 20%. That is, if you count 92.5% of the paper is going to be compulsory from the textbook and very easy. शायद एक सम कोई डिफिकल्ट इसमें आ जाए, but more than that, more than 90% of the paper are going to be super duper easy. About prelims portions, Labdi beta, we are having a meeting on Saturday. Okay, so हो जाएगा. Estimations and approximation मतलब उन लोग तुमको guess करने बोलेंगे, passages दिया रहेगा, estimate करने बोलेगा. I think the word itself, you know, if you know English, estimation and approximation का मतलब समझ में आ जाएगा. Okay, you will understand everything later on. Okay, टाइम मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं तो देखो, एक रफ कैटेगरी अगर मार्क्स और टाइम्स को डिवाइड करता हूं तो 40 मार्क का पेपर है, 120 मिनट्स है, तो मतलब एक मार्क के लिए 3 मिनट है. अगर एक मार्क के लिए 3 मिनट है मतलब बोर्ड के हिसाब से ये टाइम अलॉटेड है. ये स्क्रीन रखना तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना क्या करना है करना. मतलब बोर्ड ने हमको 12, 12, 12, 24, 9, 18, 24, 9 ऐसा मिनट्स दिया एंड टोटल इट हैपेंस टू बी 120 मिनट्स. बट द प्रॉब्लम क्या मालूम है, कभी कभी क्वेश्चन नंबर 4 के एक सम और क्वेश्चन नंबर 5 को आई हैव सीन अ सिनेरियो जहां पे अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को शायद 30 to 45 मिनट्स लग सकता है. मेरा सजेशन है कि यहां तक का पेपर, क्वेश्चन नंबर 3 तक, ट्राई टू फिनिश विद इन 1 आवर. ये मेरा सजेशन है. अगर तुम लोग को आइडियल टाइम लेना है, ये क्या है पता है? नाउ दिस आइडियल टाइम मतलब क्वेश्चन नंबर 1 8 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 बी 8 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 8 12 मिनट से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन 2 बी 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 8 10 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एंड सो ऑन. और क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने 30 मिनट्स दे दिया है. बट अगर मुझे पूछोगे तो दो चीज कर सकते हो. एक बार क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देख लो, चेक वेदर दोस आर द क्वेश्चंस वेयर यू विल नीड टाइम. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि ऐसा लगता है बहुत इजी है, बट अंदर कोई ना कोई सॉल्विंग के टाइम ट्रिक होता है. यस, यू आर अलाउड टू वेयर वॉचेस. तो मेरा सजेशन है कि 1 आवर में इतना फिनिश करो. अगर तुम लोग बोलोगे 1 आवर में पॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल. अ ईयर बैक, last to last year, I wrote prelims with students in their centers. मैंने ये पूरा पेपर विथ ऑप्शन आई हैव कंप्लीटेड इन लेस देन 1 आवर. Not only me, the topper of Adyan tutorials that time was sitting next to me and writing the same paper of our prelims. She finished 1 hour, within 1 hour and scored full marks. Even I scored full marks in that exam. So what I'm trying to say is, question number 3B तक अगर 1 hour में हो गया, it is possible. Yes, शिवानी, अभी देखो ना, ये सारे सम्स है ना, टेक्स्ट बुक के नंबर्स भी सेम होंगे. अगर तुम लोग इनफ प्रैक्टिस किया ना, इनफ प्रैक्टिस, तो सब कुछ बाय हार्ट हो जाएगा. मेजॉरिटी चीजें तो गलती होने का स्कोप ही नहीं होगा. तो प्रैक्टिस देम सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स. एंड हाउ टू प्रैक्टिस, यू कैन आस्क देविक फ्रॉम देवी दयाल. ही नोज इट. देविक यू देयर? हाउ मेनी टाइम्स टू राइट देविक? I don't know if he's there in the lecture and he will reply. Okay, I will catch hold of him another day. No, Preet. Yes, Devik, right? You know how to practice. Yes, he's there. He replied. Great. No, now basically what is important is पेपर एटलीस्ट 10 मिनट्स पहले पेपर कंप्लीट होना चाहिए, या फिर 10 मिनट्स पहले तुमको लिखना बंद करना चाहिए.
क्रिश प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बोर्ड एग्जाम को अभी भी टाइम है। हाउ मेनी टाइम्स, देयर इज नो लिमिट। जब तक तुम्हारा परफेक्शन नहीं आता है, किसी किसी का 2 बार में हो जाता है, किसी किसी का 3 बार में हो जाता है, बट इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस इट सो मेनी नंबर ऑफ टाइम्स। बट पेपर को 10 मिनट्स पहले फिनिश करना जरूरी है। आई हैव टू फिनिश मोस्ट ऑफ द सेशन बिफोर 8। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड ले लूंगा तुम्हारा। सो जस्ट पे अटेंशन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोग शेयर कर लेते हैं। 10 मिनट्स बिफोर। व्हाई 10 मिनट्स बिफोर? क्योंकि सपोज 10 मिनट्स पहले का बेल हुआ ना, बेल, तो तुमको थ्रेड मिल जाता है। और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, फाइनल बेल बजने के बाद अगर तुम लोग टाई कर रहे हो, बोर्ड एग्जामिनर तुम्हारे लिए रुकेगा जरूरी नहीं है। आज जब स्कूल में एग्जाम होता है या क्लास में एग्जाम होता है, तो जब पेपर मांगने आता है तब तुम लोग बांधने का चालू करता है। बोर्ड एग्जामिनर जो पेपर हाथ में आएगा वो लेकर जाएगा और वही पेपर तुम्हारा सबमिट होगा बोर्ड में। तो इट्स बेटर ऑलवेज 10 मिनट्स, टाई द पेपर। अपार्ट फ्रॉम दैट तुमको 10 मिनट्स चाहिए अगर सप्लीमेंट लिया है उसको बारकोड, सप्लीमेंट को होलोग्राफ स्टिक करने को। काफी बार एग्जामिनर्स लोग पहले ही स्टिक करवा देते हैं, काफी बार एग्जामिनर्स लोग बाद में स्टिक करवा देते हैं। In either case, make sure that barcode sticker, holograph stickers are stuck properly. There is a particular way to stick the barcode and holograph. We will be taking that session, and I am planning to take that session offline when we start with our classes. So things to be done: check whether the question numbers are written properly. क्वेश्चन नंबर प्रॉपर मतलब द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर शुड आल्सो बी सेम। मतलब रोमन नंबर 1 है तो रोमन नंबर 1, न्यूमरल 1 है तो न्यूमरल 1, या फिर अगर ऐसा 1 2 दिया हुआ है, इवन दैट 1। ओके, द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर शुड बी सेम। चेक वेदर कंपलसरी क्वेश्चंस आर रिटन और नॉट। तुम लोग बोल गए ना सर मैं भूल गया, ये सब होना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, नो यू आर नॉट अलाउड टू स्टेपल इट, रागेश यू हैव टू टाई इट, क्योंकि पेपर स्कैन होता है। मेक श्योर दैट क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस लिखे हो। Do not forget, yes, Devik remembers it very nicely. Do not forget to question. Anybody wants to know what happens if you miss writing question number? You get 0. Check all your calculation. याद रखो तुम्हारे पास, जैसा हम लोग स्टैटिस्टिक्स में बताया था, you people have beautiful abilities of adding the same column thrice and getting 3 different answers. Now these are certain superpowers our kid possess, unfortunately not appreciated by people around us. Okay. एक्स्ट्रा एंड में लिखना प्रीत, आई हाईली नॉट सजेस्टेड एट द बिगिनिंग। जगह छोड़ के एंड में लिखना। इफ यू विश टू राइट एक्स्ट्रा, लीव द स्पेस एंड राइट एट द एंड। और अगर समझो बाद में नहीं लिखना है तो वो जगह को जाके स्ट्राइक आउट करना विद द पेन। ओके, चेक द फाइनल आंसर एंड राइट यूनिट्स इन द फाइनल आंसर एज वेल। ओके, नाउ एक पेपर दिखा देता हूं, नॉट एन आइडियल पेपर, पेपर विथ मिस्टेक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. So quickly I will run through it. Then there are few students who are having another seminar at 8. So I wish them all the best for that. अभी यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिखना जरूरी है। अभी there is one thing that you need to remember. ये जो मेन क्वेश्चन नंबर है ना 1, now this has to return on each and every page. हर पेज में लिखना है। Now why? क्योंकि देखो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 लिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 चला गया, तो 4 किसका है? क्वेश्चन नंबर 1 का है कि 2 का है? सेम पेज पे ऊपर लिखा रहना चाहिए तो पता चलेगा। ओके, सो मेक श्योर दैट मेन क्वेश्चन नंबर इज रिटन एवरीवेयर। फिर 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहां पे एक यहां पे। मेरे हिसाब से ये लाइन यूजुअली लोग क्यों बनाते हैं? आई बिलीव स्टार्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो लाइन ड्रॉ मत करो, और ये लाइन ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं है, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। हिस्ट्री ज्योग्राफी में बनाते हो तुम लोग सो दैट तुम्हारा आंसर थोड़ा बड़ा दिखे, अंडरस्टूड। मैथ में सम बड़ा करने के बाद मार्क्स नहीं मिलता है। Now if you see, this student has underlined the important part of the answer, that is very important, since the common difference is constant. अभी एक्चुअली ये देखोगे ना, ये मिस्टेक है। कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है इसमें? उसने लिखा है कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर मैं रहूं तो मैं इसको 0 दे देगा। एग्जामिनर मिस कर देता है, मॉडरेटर मिस नहीं करेगा। अरे कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट ही होगा ना। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सेम डिफरेंस। इधर लिखना है डिफरेंस बिटवीन ऑल द कंसेक्यूटिव टर्म्स। Difference between all the consecutive terms or any two consecutive terms are same.
समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट मतलब गलत हो जाता है। यस 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 यस, देखो देयरफॉर साइन है तो मेक श्योर दैट यू पुट देयरफॉर साइन। अभी देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 मिसिंग है, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 4 किसका है, उसके लिए उसको पीछे के पेज पे जाना पड़ेगा एग्जामिनर को। सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एग्जामिनर वी आर गोइंग टू राइट इट ऑन एवरी पेज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, आई वांट इट कंपलसरी, मेन क्वेश्चन नंबर टू बी रिटन ऑन ईच एंड एवरी पेज। अभी अभी देखो मेरे हिसाब से ये ब्रैकेट गलत है, तो टेक केयर ऑफ दैट, फाइनल आंसर इन अ बॉक्स। ये भी ब्रैकेट उसको, ये साइड का ब्रैकेट प्रॉपर बन रहा है, ये साइड का ब्रैकेट नहीं बन रहा है, मॉडरेटर में, सम मॉडरेटर में कट योर आंसर, जाता है 39 पे भी जाता है। ओके अभी dx मेरा सजेशन है यहाँ पे लिख दो, कहां से आया, गिवन, डू नॉट गिव एनी चांस। देखो फुल मार्क्स मिला तो इट इज रीचेक ट्वाइस विद द सोल पर्पस इन देयर लाइफ टू कट मार्क्स। सर शी यूज पेंसिल टू ड्रॉ द बॉक्स, या दैट्स ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी देखो ये एम्प्टी स्पेस है, आई वांट यू टू कैंसिल दिस एम्प्टी स्पेस विथ द पेन, पेन के साथ कैंसिल करना है, पेन के साथ, मेन क्वेश्चन नंबर मिसिंग है इधर हर लेवल, ये पेन के साथ कैंसिल करना है, नॉट पेंसिल। I usually write in cursive, but many people suggest to stop writing cursive. I have stopped writing like I does cursive writing very difficult for the. ऐसा कुछ नहीं है रिया, I have many students. In fact, almost all our topper were cursive. So don't worry about it. Okay. जहां पे भी खाली स्पेस तुम लोग ने छोड़ा है एवरी पेज, अभी क्या हो रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इधर खत्म हुआ ना, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, सपोज तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां से स्टार्ट नहीं कर सकता, तो मैं ये जगह खाली छोड़ दूंगा, तो खाली छोड़ रहा हूं तो स्ट्राइक इट आउट। ओके स्ट्राइक इट आउट। अभी ये स्ट्राइक क्यों करते हैं ना, विद पेंसिल भी मत करना, विद पेन करो। अभी ये क्यों करता है मैं बताता हूं। नाउ अपन हम लोग अगर मैं पेंसिल से मैं स्ट्राइक आउट करता हूं ना, तो एग्जामिनर को ये ना पेन से स्ट्राइक आउट करना पड़ता है कंपलसरी, क्योंकि खाली जगह है, तो बाद में कोई उसका मिसयूज ना कर पाए, तो एग्जामिनर मेक श्योर दैट कि ये पेन से कैंसिल हुआ हो। तो अगर तुम लोग पेंसिल से कैंसिल करोगे तो उसको पेन से कैंसिल करना पड़ेगा, अगर तुम लोग ने पेन से कैंसिल किया तो तुम लोग उसका काम कर रहे हो। तो ये जस्ट थोड़ा सा इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शन है भाई, मैंने तेरा थोड़ा काम कर लिया है, सो बी फेयर टू मी। पेज वेस्ट नहीं होगा, नहीं नहीं पेज वेस्ट होने दो, दैट इज द रूल ऑफ द बोर्ड। ओके नाउ इधर LHS लिखना है, लिखा नहीं है, इधर इक्वल टू 0 कैंसिलेशन देखो, ऐसे कैंसिलेशन नहीं करते, कैंसिलेशन ऐसे करते। बॉक्सेस कैन बी विद पेंसिल, यहाँ पे भी मेन क्वेश्चन नहीं लिखा है। अभी देखो जब तुम लोग ग्राफ बना रहे हो लीनियर या हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम तो होगा नहीं मोस्टली ये बार, तो ये जो पार्ट है ना, पहली बात तो ग्राफ में यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में क्वेश्चन नंबर लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के लिए स्पेस हो ना हो, तुमको लिखना जरूरी है, स्केल लिखना जरूरी है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आएगा सप्लीमेंट पे और ये आएगा ग्राफ पेपर पे। सप्लीमेंट मतलब ये तुम्हारा मेन सप्लीमेंट पे रहेगा, और ग्राफ पेपर तुम्हारे एंड में टाई होगा। बीच में ग्राफ पेपर टाई करना नहीं है, वो फट जाएगा या घूम जाएगा, एंड में टाई करो विद क्वेश्चन नंबर। निमिषा इट डजंट मैटर, डू इट विथ पेन नीटली, मैं बताऊंगा वो शुभम। ओके इज दिस वेरी क्लियर बच्चा लोग? ओके सिमिलरली ये सप्लीमेंट और ये ग्राफ। नाउ रफ वर्क मेरा सजेशन है, डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, डू नॉट डू इट ऑन द मेन पेपर, क्योंकि तुम्हारा रफ वर्क देख के कोई मर सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब मैं सजेशन करूंगा कि क्वेश्चन नंबर के साथ लिख दो। अभी इसका 2 रीजन है ऐसा करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन नंबर विथ पेन और पेंसिल, मतलब ऑफकोर्स विथ पेन ना, कौन क्वेश्चन नंबर वो सब विथ पेन, टॉप ग्राफ पेपर पे विथ पेन। गुड क्वेश्चन वरुष। नो यू डू नॉट गेट एक्स्ट्रा वर्कशीट, डोंट बिहेव इन दैट। देयर आर 2 रीजंस व्हाई आई डू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी समझो कोई बच्चे ने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है और उसका रफ वर्क ऐसा दिखता है, तो किसी का रफ वर्क ऐसा देखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा दिमाग में कि रफ वर्क, यार रफ वर्क इतना मैनेज किया अच्छे से। प्रॉपरली करो। अगर 52 into 3 करना है, तुम्हारा ऐसा रहता है 52 into 3, वापस आके ढूंढेगा ना तो कुछ मिलता नहीं है, तो इसको नीटली लिखो 52 into 3, नीटली करो, 3 2 6, 5 3 15, 156,
क्वेश्चन नंबर 1A का सेकंड है। दो चीजें, एक इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम है, ये कब काम आता है मालूम है, तुम लोग कोई बता सकता है? नो नहीं, ये कॉलम तो पहले ही बना के रखना है, रफ वर्क तो लिखना ही है ना, वैसे भी तो टाइम कैसा जाएगा श्रेया? रफ वर्क तुमको 15 मिनट पहले मेन सप्लीमेंट मिलता है, उसमें तुमको ये कॉलम्स बना के रखो लास्ट के 2 पेज पे। एग्जैक्टली प्रीत, हितेश, यू पीपल आर ऑन। यस यस डियान, वेरी गुड डियान। मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर गेटिंग। अगर तुम लोग पेपर रीचेक कर रहे हो ना, तो सबसे पहला हमको वो सब रीचेक करना पड़ता है कि हम लोग कैलकुलेशंस कहां किए। तो कैलकुलेशन ना समझो, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है ना, तुमको वापस लिख के करना नहीं पड़ेगा। हु टोल्ड यू दैट श्रेया? हु टोल्ड यू दैट पेपर टचिंग बिफोर? क्वेश्चन पेपर इज नॉट अलाउड बिफोर टाइम। आंसर पेपर तुमको टच करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमको तो दुनिया भर का डिटेल्स भरना होता है, 15 मिनट्स पहले मिलता है, वो सारा मिथ है। रफ वर्क किया ही नहीं तो ड्रॉ तो चलेगा क्या? नहीं, ड्रॉ करना पड़ेगा। नो यू कैन नॉट, स्टैनली अवॉइड इट, मार खाओगे अगर इसके बाजू में किया तो। ओके तो याद रखो, बड़ा बड़ा कैलकुलेशंस भी आएगा, वो सारा सब इधर रहने दो, रीचेकिंग के लिए बहुत कम आ जाएगा। लास्ट 2 पेजेस में करो, बेटर रहेगा, ये मेरा सजेशन है। बाद में तुमको जो करना है करो। देखो मैं सजेशन कर रहा हूं, आर्ग्यू मत करना कोई भी चीज के लिए। यू वांट टू डू समथिंग एल्स, तुमको बाजू में करना है करो। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ मिस हैप। एनी टाइप मतलब बोलते हैं ना, लक लक कैन बी क्रिएटेड व्हेन यू टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग ना, तो लक भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी का मूड, किसी का नसीब, ऐसा पेपर लिखना है ना कि तकलीफ ही नहीं देगा। पेपर इतना अच्छे से लिखना कि एग्जामिनर रॉन्ग रहेगा ना तो भी रॉन्ग नहीं देना चाहिए। तो ये सब एक आर्ट होता है ना। दिस आर ऑल थिंग्स आर वेरी गुड, दिस शोज योर प्लान, दिस शोज योर प्रिपेयर्ड। यू हैव टू लव दिस, शो द रफ वर्क। तो तुम्हारा बहुत सारे करेक्शंस में मार्क्स कट किया जाएगा, क्वेश्चन रेज किया जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी स्टैटिस्टिक्स का है तो तुम लोग रीचेक कर सकते हो, एंड इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम। अगर पूरा क्यों क्यों हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पहली बात तो तुम अलजेब्रा में पूरा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लोगे, दैट इज अ बिग टास्क। सप्लीमेंट हार्डली कोई यूज करेगा, बोर्ड का बहुत ज्यादा बड़ा शीट होता है। यूज भी हुआ तो नो प्रॉब्लम। रफ वर्क विथ पेन, लाइंस पेंसिल से ड्रॉ करना है विथ पेन। तो प्लान इनफ टाइम, आई विल कम टू दिस ऑन लेटर ऑन, क्योंकि इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी तक हमारे पास टाइम टेबल और ये सब नहीं है, यूजुअली वी हैव। तो याद रखो, डू नॉट रश, हैव द राइट गाइडेंस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, एंड वी आर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स येट टू बी गिवन गाइडेंस ऑन। तो अभी मुझे लगता है इतना इतना अप्लाई तुम लोग प्रीलिम्स में करो, देन देयर आर लॉट ऑफ प्लानिंग्स टू बी गिवन व्हिच विल बी गिवन विद टाइम। यस यस यू कैन यूज रागेश्वरी, यस यू कैन यूज। रफ वर्क के बाद सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन यूज जेल पेन विच इज वाटर प्रूफ। नो सानिका, यू कैनॉट चेंज द क्वेश्चन नंबर। तो ग्राफ पेपर तो लास्ट में ही लगेगा, उसका टेबल वही ड्रॉ होगा जहां पे वो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद उसका टेबल बनेगा, ग्राफ पेपर लास्ट में अटैच होगा। यस यू कैन टेक द सप्लीमेंट स्टैनली, यस यू कैन राइट विद ब्लैक पेन। बॉल पेन अलाउड है मतलब? मोस्टली तो नहीं है, हम लोग प्रीलिम्स में नहीं कंसिडर करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स प्रीलिम्स में नहीं आएगा। यू विल नो इट पृथ्वी, मैंने प्रीलिम्स के बारे में ऑलरेडी पहले ही डिस्कस किया। अभी मुझे ब्रांड्स मत पूछो यार, ये क्या क्वेश्चन है? सर ट्राइमैक्स पेन चलेगा क्या? अरे मेरे को पता भी नहीं। जेल पेन यूज करो, वाटर प्रूफ रहेगा, इफ यू आर कंफर्टेबल। दैट विल बी टॉक्ड अबाउट इन ज्योमेट्री, नॉट टू मी। सर बॉक्स पेन से बनाया तो विल इट लुक गुड? नो, अवॉइड, क्योंकि वो स्केल पे लग जाता है और वो स्केल तुम्हारा दूसरा पेपर को खराब कर देगा। रफ वर्क विथ पेन डेफिनेटली। हाँ यूज करो स्टैनली, और वहीं से गांव चले जाओ खेती करने। ओके, नाउ एनी जनरल क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन